Hello. I am Dr. Ashok Kumar, Head Department of Zoology and Industrial Fish and Fisheries, Ganga Singh College, Chhapra. Yesterday, I taught you management of rearing pond. Management means management is destined to optimize production out of the input involved. So, those processes which are involved in maximum production out of the input involved, that is management, for which we in rearing pond, as I had explained you people that the hatchlings are the flies are reared and they remain in the rearing pond for a period of 3 months, and there they attain a size of 100 to 140 millimeter in a period of 3 months, and now they are called fingerlings because it is like the size of a finger, and it is called fingerlings. Now, so for that, yesterday I had already explained plants and weed eradication should be done by 2,4-D, and that is a herbicide 2,4-D. 2,4-D means 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, and by the spread over the weeds. And besides 2,4-D, Cu4 is or CuSO4, copper sulfate in soluble form, they are also spread over the heavily infested weeds of rearing pond. Then we do predatory and weed fishery eradication. That is, for predatory and weed fishery eradication, 2,000 kg or 2,500 kg of mahua wild cake, that is Basia latifolia. Mahua wild is derived from mahua, and that plant is called Basia latifolia, mahua wild cake, and the amount of mahua wild should be 2,000 to 2,500 kg per hectare. Hence, how it works? Mahua wild cake, they destroy the RBC. Hence, oxygen carrying capacity of the RBC becomes vanished. So, without RBC, it can't reach there. Third is liming, 250 to 300 kg per hectare. It is given, and after 2 weeks of predatory fish eradication, we do liming. Then eradication of insect. In eradication of insect, we use soap while emulsion. The amount of soap should be 56 kg, and oil should be 18 liter. Hence 74 liter becomes. The emulsion is prepared, and by mixing it and by heating it. So after cooling it, it should be spread over the surface of the water. And next is fertilization, organic fertilizer, that is 2,500 kg per हेक्टेयर, 2,500 kg पर हेक्टेयर. हम इसको पहले 4 भागों में इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम लोग बांट देते हैं, जैसे 625 kg प्रति मंथ. तो पहला ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब कैटल डंग, वो पहला जो है सो
इंट्रोडक्शन जब हम फ्लाई का रियरिंग पॉन्ड में करते हैं, उसके 15 जिस दिन करना है, मान लिया 15 तारीख को करना है, तो 15 जुलाई को करना है या 1 जुलाई को करना है, तो 15 दिन पहले मतलब 15 जून को हम लोग उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर 625 केजी डाल देते हैं, और बाकी फिर अगले महीने की 15 तारीख को फिर उससे आगे अगले महीने की कोई 3 महीने एक बार फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 दिन पहले फ्लाई इंट्रोडक्शन के, और फिर बाकी सब जो है वो 15 जून को हम डालें तो फिर 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर यहाँ तक करते हैं। तो इससे उसके बाद है इरेडिकेशन ऑफ इंसेक्ट, इरेडिकेशन इसको वो 625 केजी पर मंथ हम डालते जाते हैं, 650 केजी, तो 650 या 4 इंस्टॉलमेंट में हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं। फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में हो गया यूरिया, यूरिया 100 केजी पर हेक्टेयर, सिंगल सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट 200 केजी, अमोनियम सल्फेट 200 केजी पर हेक्टेयर, और तीसरा हो गया सिंगल सुपर फॉस्फेट वो 100 केजी पर हेक्टेयर, और चौथा हो गया ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, तो यह जो है सो यह 35 केजी पर हेक्टेयर। इस हिसाब से इसको जब हम डालते हैं तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है वो या फ्लाई इंट्रोडक्शन अब हम करते हैं 2 to 3 लाख पर हेक्टेयर के हिसाब से, 2 to 3 लाख पर हेक्टेयर तो फ्लाई का इंट्रोडक्शन करते हैं। और जिस दिन हम फ्लाई करते हैं तो उसके नेक्स्ट डे, मान लिया 1 जुलाई को हम फ्लाई इंट्रोड्यूस करते हैं रियरिंग पॉन्ड में, और वह 1 जुलाई हमारा फ्लाई इंट्रोडक्शन जब हो जाता है, देन इन दैट केस द वेरी नेक्स्ट डे 2 तारीख को 2 जुलाई को हम उसमें यह डालते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो यह फ्लाई इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाख प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम करते हैं। अब मान लिया 0.2 हेक्टेयर है, तो 0.2 हेक्टेयर मीन्स 1 हेक्टेयर इज 100 मीटर इंटू 100 मीटर, मतलब 1 हेक्टेयर का मतलब हो जाता है 10,000 स्क्वायर मीटर। अब 0.1 हेक्टेयर हमारा हो गया 1,000 स्क्वायर मीटर, उसमें हम उस हिसाब से 1 हेक्टेयर में 2 से 3 लाख प्रति हेक्टेयर हम डालते हैं। तो 0.1 जो है वह 0.1 हेक्टेयर इसका एरिया होता है, तो उस ढंग से डालते हैं। अब हम लोग जो कल्चर करते हैं तो इसमें फिंगरलिंग्स हमें बनाना है, फ्लाई इंट्रोड्यूस करना है, फिंगरलिंग्स आना है, तो इसमें कंपोजिट कल्चर करते हैं। कंपोजिट कल्चर मीन्स मोनोकल्चर एंड पॉलीकल्चर। कंपोजिट कल्चर इज ऑल्सो नोन एज पॉलीकल्चर, मतलब बहुत सारे मछलियों को हम लोग एक साथ रखे, उसमें 6 स्पेसीज का अगर हम करते हैं तो एक कंपोजिट कल्चर या पॉलीकल्चर जिसमें 6 स्पेसीज का करते हैं, तो कतला 15%, सिल्वर कार्प 20%, ग्लास सिल्वर कार्प 20%, रोहू 25%, ग्रास कार्प 5%, मृगल वो 15% टोटल, और कॉमन कार्प 20%। तो इस ढंग से हम लोग या कंपोजिट कल्चर करते हैं या पॉलीकल्चर करते हैं, जिसमें एक्जोटिक और इंडिजीनस कार्प दोनों हम लोग लाते हैं। अब यह इंडिजीनस कार्प कतला इंडिजीनस कार्प में करते हैं, अगर इंडियन IMC करते हैं, इंडियन मेजर कार्प करते हैं, तो उसमें कतला, रोहू, नैनी इसका मैक्सिमम या जो है सो 40%, 30%। अगर एक्जोटिक कार्प हम करते हैं तो सिल्वर कार्प 50%, ग्रास कार्प 15% और कॉमन कार्प 35% का करते हैं। चूँकि ये
फ्राई जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं रियरिंग पॉन्ड में ताकि वो फिंगरलिंग बन जाए, तो फ्राई जो हैं वे वोरेशियस फीडर हैं, बहुत अधिक आते हैं, बहुत अधिक खाया करते हैं। तो भोजन पर ही तो फीड कन्वर्सन उसका ग्रोथ होगा, इसीलिए हम लोग सप्लीमेंट्री फीड फिर देते हैं। तो इसमें मस्टर्ड ऑयल केक या पीनट ऑयल केक है ना, मस्टर्ड ऑयल केक या पीनट ऑयल केक है ना, यह और राइस ब्रान इक्वल मात्रा में देते हैं। तो पहले मंथ में हम 6 किलोग्राम प्रति लाख के हिसाब से दिया करते हैं ये सप्लीमेंट्री फीड चाहे मस्टर्ड ऑयल केक हो या पीनट ऑयल केक हो या सप्लीमेंट्री फीड, इसको हम दिया करते हैं। इसके अलावा तो फर्स्ट मंथ में हम लोग 6 केजी प्रति लाख प्रतिदिन। दूसरे महीने में अब वो कुछ और बढ़ जाता है फ्राइज, तो उस एडवांस फ्राई हो जाता है, तो दूसरे महीने में हम एडवांस फिंगरलिंग की ओर बढ़ने लगता है। तो अब यह सेकेंड मंथ में 10 केजी पर लाख पर डे यह हम लोग करते हैं। और थर्ड मंथ में तीसरे महीने में अब यह 15 केजी पर लाख पर डे, ये इतना हम उसको जब यह सप्लीमेंट्री फीड देते हैं तो वो उसका ग्रोथ और नेचुरल फीड के साथ के अलावा सप्लीमेंट्री फीड जब देते हैं तो यह उसका ग्रोथ जल्दी हो पाता है। ग्रास कार्प के लिए हम लोग उल्फिया, स्पाइरोडेला, लेमना, सीरेटोफिलम, ये सब पौधे जो हैं वो दिया करते हैं। तो यह सब ग्रास कार्प इसके लिए है। इसके बाद ग्राउंड नट ऑयल केक, तो एक तो यह हुआ, और एक अच्छा सप्लीमेंट्री फीड और है ग्राउंड नट ऑयल केक जो कि 35% होता है, राइस ब्रान 30% होता है, सोया मील 20% होता है, सोया मील 20% होता है, फिश मील 5% होता है, और विटामिन मतलब बी कम्प्लेक्स की गोली है ना, वो उसको फोड़ कर उसके फीड में सप्लीमेंट्री फीड में मिला देते हैं तो 2% होता है। तो यह एक स्पेसिफिक टाइप का ग्राउंड नट ऑयल केक, राइस ब्रान, सोया मील, फिश मील और विटामिन, इसको हम लोग देते हैं। अब 3 महीने के बाद अब हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। तो हार्वेस्ट करने का समय जो होता है वो हार्वेस्ट करने का समय वो स्कॉचिंग सनलाइट ना हो, इसीलिए मॉर्निंग आवर्स में हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, नेटिंग करते हैं। और फिश मील जो है वो हार्वेस्ट करते हैं, और हार्वेस्ट करने से एक दिन पहले उसको फीडिंग, सप्लीमेंट्री फीडिंग हम बंद कर देते हैं। सप्लीमेंट्री फीडिंग जब बंद हो जाता है तो वैसी स्थिति में अब सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, और स्टॉकिंग पॉन्ड में हम डालने से पहले सारे जो भी हमारे पास फिंगरलिंग्स हैं उस फिंगरलिंग्स की कंडीशनिंग हम लोग करते हैं। जिस रियरिंग पॉन्ड में हम जो उसको कंडीशनिंग करते हैं लगभग 4 से 5 घंटे तक के लिए, उसकी कंडीशनिंग जब हो जाती है तो अब हम लोग उसको स्टॉकिंग पॉन्ड में अर्ली आवर्स में, मतलब 8 बजे 9 बजे है ना, यह हम लोग उसको वहाँ रख देते हैं ताकि स्कॉचिंग सनलाइट फेस नहीं करे। तो इस ढंग से यह मैनेजमेंट ऑफ रियरिंग पॉन्ड ये पूरा हो गया है ना। अब अगले क्लास में हम लोग दूसरे टॉपिक पर चलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।